So let us start. Data. We all know data is nothing but information. Okay. Information of what? Information about all the units from either population or sample. Okay, so it is a set of observations or set of informations which is obtained by inspecting all the units of population or sample. अब डेटा में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम कहते हैं वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक. What is this variable characteristic? Variable मतलब which varies, which changes from unit to unit. जैसे कि height, weight, marks, age. Okay, so all these are the variable characteristics because it changes from unit to unit. Okay, now these variable characteristics are of two types. Either they are variables or they are attributes. Variables are numeric and attributes are non-numeric. ठीक है, वेरिएबल वो होते हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, एज. एट्रीब्यूट्स वो हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं होते, जैसे कि लव, जेंडर, रिलीजियन, ओके, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी. All these are attributes and they are non-numeric. So based on these variables and attributes, there are two types of data. बेटा ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, what are the types of data? So there are two types of data, qualitative, rather like this, quantitative and qualitative. The data based on variables are quantitative and the data based on attributes are qualitative. See how to remember this. ये last time मैंने आपको explain किया था. Quantitative मतलब which is based on quantity. Qualitative मतलब which is based on quality. So quantity मतलब which is numeric. है ना, क्वांटिटी को हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं जबकि क्वालिटी को हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो व्हाट आर क्वालिटेटिव डेटा? तो इफ द वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिक, ये बात कर रहा हूं मैं क्वालिटेटिव की, that is it cannot be expressed in terms of numbers, is called qualitative variable, and the collection of the observations of such variables are called qualitative data, जैसे कि honesty, beauty, etc. They are also known as attributes. And what are quantitative data? So if the variable characteristic is numeric, ये difference है qualitative और quantitative में. See, many times they also ask the difference between quantitative data and qualitative data. So the very first and the basic difference is quantitative data are numeric, qualitative data are non-numeric. Quantitative data is based on quantities, whereas qualitative data is based on qualities. Quantitative data has variables, qualitative data has attributes. और लास्ट एग्जांपल दे देने का, आपके 4 पॉइंट्स बन गए. 4 पॉइंट्स मतलब आपके 2 मार्क. ओके, so if the variable characteristics is numeric, that is it can be expressed in terms of numbers, is called quantitative variable, and collection of observation of such data is known as quantitative data. Example, income, age, all these are known as variables. बेटा यहाँ पे किसी को कोई query हो तो you can please ask me so that I can proceed further. Anybody having any question? Anyone? Anybody wants to ask anything? ये बात मैंने फिर से रिपीट इसीलिए की क्योंकि आज हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ने वाले हैं. ओके, मतलब टाइप्स नहीं, सॉरी, मेथड्स ऑफ डेटा. देखो, many students get confused in 2 questions, और ये जानबूझ के टीचर लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. जब आपको टाइप्स ऑफ डेटा बोले
So there are two types of data, quantitative data and qualitative data. Please everybody understand this. लेकिन जब आपको methods of collecting data बोले तो उसमें आता है प्राइमरी डेटा जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं and secondary data. So today we are going to start with the methods of collecting data. अभी तक जो हमने किया वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था. It was just for your revision purpose. Now methods of collecting data. चलो हमने डेटा की बात की, पॉपुलेशन की बात की, सैंपल की बात की, सैम्पलिंग की बात की, हमने फिर वेरिएबल की बात की, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सबकी बात कर ली हम लोगों ने. अब सवाल ये उठता है कि डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है. तो डेटा कलेक्ट करने की बेसिकली दो टेक्निक्स हैं. देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा. द फर्स्ट इज प्राइमरी डेटा एंड द सेकंड इज सेकेंडरी डेटा. नाउ व्हाट इज अ प्राइमरी डेटा एंड व्हाट इज अ सेकेंडरी डेटा? सी प्राइमरी as the name itself suggests, primary मतलब prime मतलब first hand data, first time data collected. Secondary એટલે second hand है ना, second hand data जो already collected है और आप उसको यूज कर रहे हो. Now let me give you an example to make it more clear to you all. आप सब लोगों ने पहली बार एडमिशन लिया अपने क्लास पे, तो आप सबसे मैंने फॉर्म भरवाया और आपका डेटा कलेक्ट किया. तो वो मेरे लिए क्या है? प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा. यस. अब पहले तो है ना कुछ बातें समझ लो. डेटा कलेक्ट करने वाला जो पर्सन होता है उसे इन्वेस्टिगेटर कहते हैं. सो इन्वेस्टिगेटर इज अ वन who collects the data. दूसरा होता है enumerators. अच्छा, who are enumerators? They are working on behalf of investigators. मतलब इन्वेस्टिगेटर एक ही होता है पर वो हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए वो क्या करता है? enumerators को अपॉइंट करता है. आप यूं कह सकते हो कि enumerators are kind of assistant. They are one kind of assistant to the investigators. And the third one, respondents. Okay, who are respondents? Respondents are the one who gives the data. जो डेटा देता है वो respondent है. अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं. मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में सेंसस सर्वे की बात की थी, याद है आप लोगों को? What is census survey? Who will tell me? What is census survey? Counting. Very good. Counting of a population of a country. अच्छा, who collects it? कौन कलेक्ट करता है? इन्वेस्टिगेटर कौन है इसमें? Government. Very good. From the government side. Very good. Government of India is the investigator. बराबर. और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर. आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हमारे घर पे आके डेटा कलेक्ट करेंगे हमारा? विल दे कम एंड कलेक्ट? नरेंद्र मोदी जी आएंगे हमारे यहाँ पे? नहीं. वो क्या करेंगे? एक एजेंसी को अपॉइंट करेंगे जो उस इन्वेस्टिगेटर के बिहाफ पे काम करेगी. जैसे कि हमारे इंडिया में है NSSO. So they are the enumerators. ये लोग पर्सन अपॉइंट करते हैं जिनका काम होता है इंडिया के पॉपुलेशन को कलेक्ट करना. तो इनके लिए रिस्पोंडेंट कौन हुए? हम लोग. सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर द रिस्पोंडेंट्स बिकॉज दे गिव्स दैट डेटा एंड दिस डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. Okay, this data is collected for the first time by the investigator, hence it is called primary data. बराबर. 10 साल में जब मतलब अभी लास्ट 2011 में हुआ था कि 2021 में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन नहीं हुआ. लेकिन मान लो अगर 2021 में होता तो वो क्या होता? प्राइमरी डेटा. फिर कब होगा? 2031, फिर 2041, फिर 2051. इस तरह से every 10 years this census survey is conducted. ठीक है. अब आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर
आपको एक चैप्टर पढ़ा रही है, इसका नाम है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स। आपकी टीचर ने बोला कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन एज पर सेंसस सर्वे 135 करोड़ है, बराबर है? क्या आपकी टीचर Yes, गिनने sir. गई थी? आपकी टीचर गिनने गई थी? No, sir. नहीं, उसे कहां से मालूम पड़ा? फ्रॉम वेयर शी Sensory कम्स? survey, sir. उनके पास From the primary data. यस, फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। उनके पास इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है, या उनके पास सेंसस रिपोर्ट है लेटेस्ट से, या उन्होंने टीवी में देखा, या उन्होंने कहीं सुना। So what she is using? She is using secondary data, because the census survey is already collected by the government of India and it is used by your teacher to give information to you. टीचर को ये बताना हो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है तो वो गिनने जाएगी, जब तक तो आप कॉलेज सब पास कर चुके होगे। So what she is using? She is using primary data as a source of secondary data. So this is the difference between primary and secondary. I hope the primary and secondary is clear to everybody. Yes, Any sir. questions? Any questions in primary and secondary, so that I can start from the notes reading it? Any questions? कुछ पूछना है किसी को बेटा? No, sir. Okay. So let us start with the methods of collecting data. There are two methods of collecting data: primary data and secondary data. So what are primary data? The data which is collected by an investigator or agency for the first time is called primary data. The best example is census survey conducted by government of India after every 10 years. इसका best example. बाकी बहुत सारे examples मैं बना सकता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने हमारे यहाँ पे आपका डेटा दिया, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है वो मेरे अपॉइंट किए गए इन्यूमरेटर्स हैं, उन्होंने आपका डेटा कलेक्ट किया। अब मान लो कोई कंप्यूटर सिखाने वाला बंदा मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि मुझे आपके 11th के बच्चों का डेटा दो। मैं उनको कॉल या मेल करके कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग टैली सिखाना चाहता हूँ एट एंड डिस्काउंटेड रेट वगैरह वगैरह। तो जब हम उनको आपका डेटा देते हैं तो उनके लिए वो क्या हो गया? सेकेंडरी, बिकॉज इट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अस। तो वो सेकेंडरी डेटा हुआ उन लोगों के लिए, लेकिन हमने कलेक्ट किया तो हमारे लिए वो कौन हुआ? प्राइमरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम. इट हैज नेवर बीन कलेक्टेड previously. Whereas if you talk about secondary data, so when an investigator or agency uses the data, see what the word they have used, uses the data which is already collected by some other persons or agencies, okay, by some other persons or agencies, is called secondary data. Example, when an economics teacher gives information to the students about the population of India from the census report or textbook or from television news, etc. But she is using secondary data. Now, to understand primary and secondary more precisely, let us understand the difference between the primary data and the secondary data. So what is the difference? What is the basic difference between primary data and secondary data? So the very first and the basic difference is primary data are collected for the first time, hence they are original. Obviously, पहली बार collect किया गया है मतलब वो original है. Whereas secondary data is a second hand information, hence they are not original. कैसे ये मैं आपको बताता हूँ. आपकी टीचर ने बोला कि as per census survey of 2021, the population of India was 135 crores. तो आपको क्या लगता है जिस दिन वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ उस दिन से लेके आज तक इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ ही होगी? बड़ी घटी नहीं होगी भाई, उतनी ही रही होगी. टेल मी. No, sir.
इट माइट हैव इंक्रीज्ड और इट माइट हैव डिक्रीज्ड। इट वो एग्जैक्ट 135 करोड़ तो नहीं होगी। तो सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल जनरली नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपका डेटा वो कंप्यूटर क्लास वाले को दिया, अब आप में से कुछ लोगों का फोन नंबर चेंज हो गया, कुछ लोग का एड्रेस चेंज हो गया, कुछ लोगों का मेल आईडी गलत था, तो वो तो किसका लॉस हो गया? जो वो सेकेंडरी डेटा यूज करता है। द सेकेंड डिफरेंस इज प्राइमरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट्स अंडर इंक्वायरी। मतलब सेंसस सर्वे जो होता है वो पॉपुलेशन का डेटा होता है, मतलब जितनी भी इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है हर एक का डेटा घर घर जाकर कलेक्ट करते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी डेटा। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी डेटा कहां से मिलता है? प्राइमरी डेटा में से, क्योंकि सेकेंडरी इज अ सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन व्हिच इज कलेक्टेड बाय सम अदर पर्संस और एजेंसीज इन द पास्ट। मतलब पहले तो वो प्राइमरी था, वो अब सेकेंडरी हो गया। तो मैं एक सेंटेंस देता हूं, वो याद रखना कि प्राइमरी डेटा ऑफ टुडे is secondary data of tomorrow। Exactly, जो आज प्राइमरी है वो कल सेकेंडरी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, hence they are not arranged in a systematic manner। Yes, of course। बेटा जो प्राइमरी डेटा है वो पहली बार कलेक्ट किया है, मतलब वो अभी तक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कलेक्ट हुआ है। जबकि सेकेंडरी डेटा जो है आर ऑलरेडी कलेक्टेड, हेंस दे आर इन सिस्टमैटिक मैनर। बराबर, जैसे जब सेंसस सर्वे हो रहा था तब हर स्टेट की पॉपुलेशन आ रही थी, सिटी वाइज, तालुका वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर उसको गैदर किया गया, उसको अरेंज किया गया, तब जाकर बुक में छपा कि इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़। तो वो सिस्टमैटिक मैनर में होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड होता है, जबकि प्राइमरी पहली बार कलेक्ट किया गया है, मतलब वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड नहीं होता। नेक्स्ट, प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। ऑफ कोर्स प्राइमरी डेटा जो है इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो कलेक्ट करना पड़ता है, उसमें टाइम चाहिए, मनी चाहिए, मैन पावर चाहिए, जबकि सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स लेस टाइम, मनी एंड एनर्जी, क्योंकि वो रेडीमेड फॉर्म में होता है, इट इज ऑलरेडी इन रेडीमेड फॉर्म, सो नो टाइम, मनी, एनर्जी आर यूज्ड इन दैट। Primary data are reliable because they are collected by the investigator for his purpose, whereas secondary data may not be reliable as it is collected by some other persons or agencies। आपका डेटा वो कंप्यूटर क्लास वाले मुझसे लेके गए, मैंने जो डेटा दिया तो उनको क्या लगा कि मैंने जो दिया वो सही दिया होगा। मान लो मैंने नंबर गलत दिए सारे उसको, तो उसे मालूम पड़ने वाला है नहीं, वो तो बेचारा लेके चला गया। टेक्स्ट बुक में छपा है 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसका प्रूफ क्या? सेंसस रिपोर्ट, और वो बनाने वाले कौन? लोग। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपकी एक्टिवा है, ठीक है, आप और आपका फ्रेंड एक्टिवा पे जाना चाहते हैं, ठीक है, एक्टिवा आपकी है। नाउ यू टेल मी, आप किस पे ज्यादा रिलाय करोगे? खुद चलाने पे रिलाय करोगे या आपका फ्रेंड चलाएगा उस पर रिलाय करोगे? खुद चलाएंगे। ऑब्वियसली चलो उसको दिया, ठोक वोक दिया तो वो तो बोलेगा वो तो सॉरी बोल के चला जाएगा। तो सेम चीज होती है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी डेटा जो है वो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है अपने पर्पस के लिए, तो उसको पता है उसको क्या क्या चाहिए, जबकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड फॉर्म में होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है, तो उसकी रिलायबिलिटी जो पर्सन यूज करता है वो डिपेंड करती है कि उसने जो कलेक्ट किया था उसके ऊपर। वो कंप्यूटर क्लास को जो मैंने डेटा दिया वो तो सच मान के ले गया, मान लो मैंने नाम गलत लिखा हो, फोन नंबर गलत लिखा, उसको तो पता भी नहीं है, वो तो बेचारा मेरे से ले गया सच मान के। टीचर ने आपको बोल दिया 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, अपना टीचर गिनने गई थी ना आप लोग गिनने गए थे। तो सेकेंडरी डेटा की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क होता है,
क्योंकि वो कोई और कलेक्ट करता है और कोई और यूज करता है. Okay, so these are the basic difference between primary and secondary data. See, मैंने आपसे बात की प्राइमरी डेटा की और सेकेंडरी डेटा की. सो एज यू ऑल नो नाउ कि प्राइमरी डेटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है. किसको? इन्वेस्टिगेटर. किससे? रेस्पोंडेंट से. अब ये प्राइमरी डेटा जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर है इन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट से, तो उसकी कलेक्ट करने की 3 मेथड्स हैं. देयर आर 3 मेथड्स. So there are 3 methods of collecting primary data, as you all can see: direct inquiry, indirect inquiry, and questionnaire, either by post or by enumerators. Let us understand each method in depth. पहले आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि ये तीनों मेथड्स होती क्या है. First of all, let us talk about direct inquiry. See, as the name suggests, direct inquiry मतलब when investigator himself personally goes to the respondent and collects the data is called direct inquiry. See, बहुत ही क्लियर है नाम में, डायरेक्ट इंक्वायरी मतलब इंक्वायरी इज कंडक्टेड डायरेक्टली, जिसको चाहिए, जिससे चाहिए, वो दोनों आमने सामने बैठे, उसे हम प्राइमरी डेटा डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड कहते हैं ऑफ प्राइमरी डेटा. इसका नाम पड़ गया डायरेक्ट इंक्वायरी. मतलब इन्वेस्टिगेटर पर्सनली गोज टू द रिस्पोंडेंट्स एंड कलेक्ट्स द डेटा. इसका बेस्ट एग्जांपल पॉपुलेशन सर्वे या सेंसस सर्वे. बराबर है. इन्वेस्टिगेटर या उसके इन्यूमरेटर्स खुद रिस्पोंडेंट के पास जाते हैं और डेटा कलेक्ट करके आते हैं. दूसरी मेथड है इनडायरेक्ट इंक्वायरी. एज द नेम सजेस्ट, इनडायरेक्ट मतलब इन्वेस्टिगेटर जो है वो रिस्पोंडेंट के पास नहीं जाता, वो जाता है उस पर्सन के पास जो रिस्पोंडेंट को अच्छी तरीके से जानता है. उसे हम लोग विटनेस कहते हैं. लो एक नए लोग जुड़ गए इसमें, विटनेस. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर. विटनेस. हु आर विटनेस? Witness are the one who well know the respondents. इसका मैं आपको मस्त एग्जांपल देता हूँ. आपके पापा जो हैं वो आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं, और उनको पता है कि मैं अगर मेरे बेटे या बेटी से पूछूंगा कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वो तो बोलेंगे पापा पूछो ही नहीं, बहुत मस्त चल रही है, भले ऑनलाइन है पर मजा आता है. आपके पापा को डाउट है कि साला मेरा बेटा या मेरी बेटी में से झूठ बोल रहा है या भूल रही है. तब के पेरेंट्स जाते हैं आपकी टीचर के पास और वो पूछते कि मेरे बेटे की पढ़ाई कैसे चल रही है, मेरी बेटी की पढ़ाई कैसे चल रही है. तो टीचर बोलती है कि आपका बेटा या आपकी बेटी तो कितने दिन से ऑनलाइन लेक्चर में आए ही नहीं है. सच मालूम पड़ गया, आप फंस गए. तो ये होता है इनडायरेक्ट इंक्वायरी. अब इसमें देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व. मैं आपको बता दूं, एक है आपके फादर, दूसरे हैं आप, बराबर, मतलब सन और डॉटर, और तीसरे हैं आपकी टीचर. अच्छा, हु इज फादर ओवर हियर? आपकी आवाज कट गई थी. वेरी गुड. फादर इज द इन्वेस्टिगेटर. हु इज द सन और डॉटर? हु इज सन और डॉटर? Respondents. Very good. They are respondents. And who is your teacher? Witness. Very good. Witness. मतलब जब फादर जो है
वो सन के पास या डॉटर के पास न जाकर टीचर से इस सन और डॉटर का डेटा कलेक्ट करता है, तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी तब करते हैं जब आपको बहुत ही लार्ज रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करना है, या जब आपको पता है कि रिस्पोंडेंट सही जवाब नहीं देगा, तो आप रिस्पोंडेंट के पास जाते हो, डेटा कलेक्ट करते हो। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो एक फैक्ट्री में 5000 वर्कर काम करते हैं, बराबर, और वो 5000 वर्कर को एक मैनेजर मैनेज करता है, ठीक है। अब आप एज ए इन्वेस्टिगेटर उन 5000 वर्कर के पास डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप उस मैनेजर को बोल दोगे कि सर हमको इस 5000 वर्कर का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टिगेटर हो, वो 5000 वर्कर जो हैं वो रिस्पोंडेंट है, और वो जो मैनेजर है जो इन 5000 वर्कर को संभालता है वो विटनेस है। इससे कम टाइम में आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी वर्कर, okay, and collecting the data, you collect the data from the manager who is well known to all the 5000 workers, or who has all the data of those 5000 workers. जैसे हम कहते हैं indirect inquiry. So what's the difference in direct inquiry and indirect inquiry? In direct inquiry, the investigator personally visits the respondents and collects the data. Whereas in indirect inquiry, the investigator collects the data not from the respondents directly, but collects the data from the persons or agencies who are well known to the respondents, known as witness. That is why it is called indirect inquiry. क्योंकि वो directly investigator respondent से data collect नहीं कर रहा, वो उसके witness से, जो उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, उनसे वो डेटा कलेक्ट करता है। And the third method is a questionnaire method. Now what happens in a questionnaire? Questionnaire method में एक questionnaire बनाया जाता है। Questionnaire का मतलब क्या है? See, questionnaire is basically a schedule which contains list of questions related to the inquiry. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने जो क्लास पर फॉर्म भरा वो एक तरह का क्या था, वो जो फॉर्म है वो क्या था, क्वेश्चनर था। उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे थे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मोबाइल नंबर, ओके, व्हाट्सएप नंबर, फिर आपका स्कूल का नाम, स्कूल का टाइमिंग, सब्जेक्ट ऑफर, वो सारे क्वेश्चंस थे एंड दे वर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। मैं आपका डेटा कलेक्ट कर रहा था, मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, आप रिस्पोंडेंट हो, और जो फॉर्म आप भर रहे हैं वो क्वेश्चनर है। सो क्वेश्चनर इज बेसिकली अ शेड्यूल व्हिच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। अब ये क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करने की दो टेक्निक है। या तो आप बाय पोस्ट भेजो, बराबर, मतलब जैसे कि मान लो मैं वो फॉर्म आपको भरने के लिए घर पर पोस्ट कर देता हूं, आप वो फॉर्म भरकर वापस उसी एनवेलप में डालकर मेरे एड्रेस पर आप भेज देते हो। मतलब ना मुझे आपके पास आना पड़े ना आप मेरे पास आओ। ये जो पोस्टल मेथड है ये बहुत यूजफुल है जब मुझे पूरे वर्ल्ड से डेटा चाहिए। हर जगह तो मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन हर जगह पोस्टल डिपार्टमेंट पहुंच सकता है, हर जगह पोस्ट तो पहुंच सकती है। अब ये पोस्ट में ईमेल भी आ गया। ईमेल में क्या है, यहाँ से फट देके मैंने पीडीएफ बनाया फॉर्म का, आपको मेल कर दिया, आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो मेल मिल गया, आपने वो भरकर मुझे वापस मेल कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ही आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो पोस्टल मेथड से। तो इसीलिए इन्यूमरेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो घर घर ये क्वेश्चनर लेके जाते हैं और डेटा फिल करते हैं। जैसे कि कोविड में आपके घर पे वो लेडीज आती होंगी, है ना, और पूछती होंगी भाई घर में किसी को खांसी बुखार तो नहीं है, किसी को कोविड हुआ तो नहीं है। कहते हैं जब लास्ट ईयर कोरोना का टाइम चला था तो वो क्या लेकर आई थी, क्वेश्चनर लेके आई थी। आपका नाम पूछा, आपका घर का नंबर पूछा होगा, आपका मोबाइल नंबर पूछा होगा। तो व्हाट दे वर डूइंग, they were filling the questionnaire on behalf of you. Who were they? They were the enumerators. Who was investigator? Government of Gujarat. And who are you? You are the respondent. So ये method है direct inquiry, indirect inquiry and questionnaire method.